Okay, hello everyone. So we were studying the methods of issue of share, and the first method of issuing of share, that is lump sum method, we had studied yesterday, and the journal entries which are made in that method we had studied them also. Now in today's video we are going to study the installment method of issue of shares. So, or we can say, when the shares are issued in installments, then what kinds of journal entries are made. So these entries, the names of those entries, or we can say the entries which are done after in installment method are written here. So I will just explain them one by one. So starting from the first, or we can say, just wait. Okay, so installment, what is installment method? First of all, I would like to explain what is installment method, and I think I have explained this also. So suppose a share whose face value is rupees 10. Suppose there is a share and its face value is rupees 10, and this 10 rupees, if the shares are purchased at rupees 10 for one share, then that method is lump sum method. But if the shares, or we can say, if the face value of shares are divided into different parts, then each part will become an installment. Suppose in 10 rupees, firstly the shareholders will pay rupees 3, then they will pay rupees, suppose 4, then they will pay suppose 2, and after that 1, 4, 3, 7 to 9, 110. Okay, suppose 10,000 shares are there. In 10,000 share, all the 10,000 shares are being sold, and when the money is received, so when the money will be received, then on the first installment only 3 rupees will be received for 10,000 shares. Not the whole amount of rupees 10 will be received, but only rupees 3 for one share will be received at the first installment. After that, rupees 4 will be received for 10,000 share. After that, 2 rupees will be received for 10,000 share, and after that 1 rupee will be received for 10,000 shares. So in total 10 rupees will be received, but in the form of division or in the form of installments. So let's just see what are the entries. And I told you the names of installment, the name of every installment. The first installment's name was share application, the next was share allotment, the third one was share first call, and after that the last one was share second and final call. So these are the entries which I'm going to explain how these entries are being done for when the shares are sold in installment method. So firstly, the same entry will be done, will be made. So in the first entry, same in the lump sum method, also here also the same entry will be made. So firstly we will just receive all the amount in total bank account debit to share application. Suppose there are 10,000 shares, we will receive in the first installment, multiply by 3, we will receive 30,000 in the first installment. पहले इंस्टॉलमेंट में हम लोग को 30,000 रुपये मिलेंगे. बट इन द लम सम मेथड, इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वी गेट ऑल द मनी. पहली इंस्टॉलमेंट में हमको सारा पैसा मिल जाता था, बट इन इंस्टॉलमेंट मेथड वी विल जस्ट रिसीव रुपीज़ 3 in the first installment, and the entry would be bank account debit to share application, the same as the lump sum method. So bank debit कल बता चुके हैं, वो याद रखिएगा. In the next what will be there, what was the entry? Share application account debit to equity share capital. Now this money is transferred to share capital, or the amount of these share, the amount of 30,000 shares are being sent to the, or we can say the shares of rupees 30,000 are issued to the shareholders, or that money is transferred to share capital. We can say anything we can say. So share application account debit to equity share capital. So these two entries were there in the lump sum method. So here also 30,000 will be there in the debit, also in the credit. So journal entry format is just the same as you have studied in class 11th, particular, ledger, folio, amount, debit, amount, credit. Okay.
Now the third entry, what is the third entry? Now listen it very carefully, understand it very carefully, because this entry is little bit changed from the first installment. यहाँ पे एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और क्या चेंज आता है इस एंट्री में ये बताते हैं आपको। पहले देखिए, हमारी फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन है, यहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जब सेकंड हुआ है ये, जब मनी ट्रांसफ़र हो गया शेयर कैपिटल में, तो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई, पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा हमारे पास आ गया, कंपनी के पास आ गया। अब बात आती है दूसरी इंस्टॉलमेंट की। पहली इंस्टॉलमेंट में क्या होता था, पहली इंस्टॉलमेंट में शेयर एप्लीकेशन में क्या होता था, कंपनी ने शेयर इशू करे मार्केट में, जिनको ख़रीदना है उन्होंने कंपनी को पैसा दे दिया। कंपनी ने किसी आदमी से पैसा नहीं मांगा था, बट जो इंटरेस्टेड था उसने कंपनी को पैसा भेज दिया था खुद से। तो पहली एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बट नाउ पहली एंट्री होने के बाद, पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाने के बाद, दूसरी इंस्टॉलमेंट ली जाती है, मान लीजिए करीब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी ली जाती है पहली दूसरी इंस्टॉलमेंट, तो कंपनी को नाम पता होता है कौन कौन से शेयर होल्डर्स ने उनके शेयर्स ख़रीदे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमने फॉर एग्जांपल बाई चांस हमने कोई शेयर ख़रीदा कंपनी का, हमने कंपनी को पैसा भेजा, पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो कंपनी विल गेट ऑल माई डिटेल्स दैट मिस्टर हारिस जफ़र ही इज़ अ शेयर होल्डर ऑफ अवर कंपनी एंड ही हैज़ परचेज्ड दिस अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ दिस अमाउंट। कंपनी को मेरी डिटेल्स पता लग जाएगी कि ये हैं, इन्होंने हमारे शेयर्स ख़रीद रखे हैं, तो इन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट अपनी पे कर दी है। सो इन द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम आएगा, नाउ कंपनी हैव टू आस्क मी द मनी ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। जो दूसरी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा, ड्यू होगा, वो कंपनी हमसे मांगेगी। अब कंपनी विल आस्क फॉर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट टू पे। कंपनी कहेगी, कंपनी एक नोटिस भेजेगी या एक मैसेज भेजेगी कि योर सेकेंड इंस्टॉलमेंट टाइम इज़ कमिंग, सो यू हैव टू पे द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मनी, and the next installment is share allotment. So the next entry would be share allotment account debit to equity share capital. इसका मतलब क्या हुआ, इस एंट्री का मतलब हुआ है कि अब कंपनी पैसा मांग रही है, कंपनी को अब पैसा मांगना पड़ रहा है, किससे, अपने शेयर होल्डर से जिन्होंने एप्लीकेशन भेजी थी, जिन्होंने शेयर्स ख़रीदे हैं, क्योंकि कंपनी के पास उनकी डिटेल्स पहुंच चुकी है। अब कंपनी को पता है किससे किससे पैसा मांगना है। सो कंपनी इज़ आस्किंग मनी इन दिस एंट्री। इस एंट्री का मतलब होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट कंपनी इज़ आस्किंग मनी ऑफ शेयर अलॉटमेंट फ्रॉम whom, फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, वी कैन से फ्रॉम द शेयर होल्डर्स हु हैव परचेज द कंपनीज शेयर। सो बीइंग अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप, यहाँ पे क्या मतलब हुआ, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी का पैसा मांगा है। 4 का था अलॉटमेंट, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 4 रुपीज़ की थी, 10,000 शेयर का, तो 40,000 कंपनी विल आस्क इन द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। So when company have asked the money, the public have to pay for it. We cannot say the public here now. We have to say shareholders. Now shareholders have to pay 40,000 rupees to the company. So company will get 40,000 bank account debit to share allotment. So company will receive the money of allotment. The next installment money company will receive in this entry. So bank account debit to share allotment. Bank means the company have received the money of which installment, second installment, that is share allotment. Being allotment money paid, or we can say received, not paid, received, because this narration is written by the company, that is why पेड नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर रिसीव लिखा जाएगा कि कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया, किसका, शेयर अलॉटमेंट का। नाउ सेम, अब थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात आती है। थर्ड इंस्टॉलमेंट में कंपनी फिर पैसा मांगेगी, जब उसका टाइम आएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट का, किससे मांगेगी, उन्हीं सेम शेयर होल्डर्स से जिन्होंने कंपनी के शेयर ख़रीदा हुआ है। जिस 10 रुपये का जो एक शेयर था उसको डिवाइड करके डिवाइड हुआ है वो शेयर, ये वाला पैसा मिल गया उन शेयर होल्डर से, ये वाला पैसा शेयर होल्डर से मिल गया। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट की बारी आती है। कंपनी विल आस्क द थर्ड इंस्टॉलमेंट मनी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम नरेशन होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी कॉल्ड अप, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी कॉल्ड अप। सो और वी कैन से बीइंग फर्स्ट कॉल मनी कॉल्ड अप, पहली कॉल का पैसा मांगा गया। फर्स्ट कॉल मतलब क्या, थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये सिर्फ नाम है। फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट एप्लीकेशन इज़ जस्ट अ नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट। सो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी कॉल्ड अप, कंपनी ने पैसा मांगा किसका, थर्ड इंस्टॉलमेंट का, दैट इज़ शेयर फर्स्ट कॉल। कितना रुपए मांगेगी, 2 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर का, 20,000 रुपीज़ कंपनी विल आस्क
to pay from its shareholder. Now the fourth entry would be bank account debit to share first call. Now company will receive the amount same as in the second installment, and in the this installment is completed here. And now the fourth and the last installment, that is share second and final call, will the duration of second and final call will come. So company will ask the fourth installment money, that is share second and final call account debit to equity share capital. कंपनी मांगेगी फोर्थ कॉल का पैसा, सॉरी फाइनल कॉल का पैसा, किससे? उन्हीं शेयर होल्डर्स से जिन्होंने जिन्होंने 10 रुपये वाला शेयर ख़रीद रखा है और उनको अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करनी है. सो 1 रुपीज़ के साथ 10,000 शेयर का company will ask 10,000 rupees from the shareholders, and after that company will receive that amount from the shareholders. So this entry would be made. So these are the entries of the all the installments. ये सारी इससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं होती, सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं शेयर्स में, मैक्सिमम 4 होती हैं. हो सकता है क्वेश्चन में आपको 3 ही इंस्टॉलमेंट दे दे या लीना पूछे तो 4 3 और इसको भी 3 कर दे, 10 को ऐसे डिवाइड कर दिया. ओके, हो सकता है ये भी ना कहे और इन दोनों को दे दे 5 और 5 में डिवाइड कर दे. दो इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांग रही हो. तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कैसे शेयर को इशू कर रही है, कितनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रही है इन शेयर्स का. सो दिस एंट्री वाज ऑन इंस्टॉलमेंट मेथड. अब जो आगे आने वाली चीज़ है, ये दीज ऑल थिंग आर वेरी बेसिक थिंग. दिस ऑल थिंग इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. ये जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ये बहुत ही बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ है. अब जो आने वाली चीज़ें हैं वो अब टिपिकल होना शुरू होंगी. ये बेस आपका बन गया, यहाँ पे बेस क्लियर हो गया. यहाँ पे बेस पूरा क्लियर कर लीजिएगा तभी अगली वीडियो देखिएगा, वरना कुछ नहीं समझ पाएंगे क्या हो गया, कैसे हो गया. क्योंकि अब जो पढ़ाएंगे, अब ये पढ़ाएंगे कि मान लेते हैं कि 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे और कंपनी के पास आ गए 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन. कितना भी, ये तो डिपेंड करता है पब्लिक पे कि कितने पब्लिक ने पैसा भेजा है. हो सकता हो कि 12,000 एप्लीकेशन आ गई, 10,000 शेयर्स से एप्लीकेशन 12,000 आ गई, 2,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई कंपनी के पास. अब इन 2,000 एप्लीकेशन का कंपनी क्या करेगी एक्स्ट्रा? शेयर्स तो मार्केट में सिर्फ 10,000 है, पैसा आ गया 12,000 एप्लीकेशन का, तो 2,000 शेयर्स का जो पैसा आया है मींस 20,000 रुपीज़, उसका कंपनी क्या करेगी? ये सब चीज़ें अब आगे आने वाली हैं. तो ये जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. एंट्री तो हमें बिल्कुल आनी चाहिए कि कौन सी एंट्री क्यों होती है, ये सारी एंट्रीज़ क्यों होती हैं, और ये बहुत डिटेल में आपको बता दिया गया है. So before watching the next video, watch this video very carefully, watch the previous videos very carefully. After that, the next video, after that only you can get the concept of next video. So this is from me for the today's video. Okay, thank you.